we see the other rules. Further, we see the different rules and uses of past perfect tense. Now you can see the another. It expresses those conditions of the past that were impossible to fulfill. It is like desire, or it is like your wish which is not fulfilled, still you can say that. As the here express the condition in the past were impossible to fulfill now. पास्ट की जो कंडीशन है आप सोचते हैं अभी वो फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन आप उसे इस टेंस में यूज और इस टेंस का यूज करके कह सकते हो. जैसे कि हमें यहाँ पे कंडीशनल वर्ड इफ का यूज करना है. इफ यू हैड क्वेश्चन, सो यहाँ पे हैड वर्ब 3, तो हमने ये टेंस का यूज किया. हैड क्वेश्चन हिम अर्लियर, things would have improved. So according the conditional sentence, we write down this. For writing this conditional, we use this tense. Then rules for affirmative sentences. affirmative sentence में हम कैसे लिखेंगे इसको? पहले तो हमें singular plural subject सेम होते हैं यहाँ पे. If there is singular subject or plural subject, in both way there isn't any difference related here verb. You can write had in both ways. Then third form of verb, that is compulsory to write down in negative, interrogative or in affirmative. That is compulsory. Object and then over. See example, she had cooked the food. So here had cook, that shows us this tense. Now let's move forward. Rules for negative sentences. Subject means here singular, plural, both. Singular, plural subject, had, not, third form of verb, and then object. So here not I use, which is shows us negative sentence. They had not attended the function. So look at this negative sentence. They had not. Verb 3 compulsory and the object you can see. रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसे कैसे लिखेंगे? हैड पहले लिखना है, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी होता है. नेक्स्ट वी यूज क्वेश्चन वर्ड. हैड बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, question mark. This is the formation of interrogative sentences. Look at the example. Two example we have here. Had she watched a movie? Then why had you not gone to Delhi? So this is WH word plus negative. You can write this in a positive way also, like why had you gone to Delhi? That is also possible. And here, had she not watched a movie? You can write not. That is also correct. But where to put the correct word, you have to concentrate that things. कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है? सब्जेक्ट के पीछे, सब्जेक्ट के आगे लिखना है, वर्ब के आगे लिखना है, वर्ब 3 का यूज करना है, हैड हमें यूज करना है. जैसे कि हैज हैव करते हैं प्रेजेंट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में हमें क्या करना होता है? उसका वर्ब टू हैड यूज करना होता है. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है ये टेंस के लिए. नाउ दिस टेंस इज ओवर. लेट्स वी मूव फॉरवर्ड द अनदर वन विच इज द बेसिस ऑफ दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. टुडे वी विल लर्न दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूजेस एंड फॉर्मेट. It indicates an action which began in the past and continue up to a certain point of time in the past. What it means, this is the only uses of this tense, that this action began in past, in some time between it is continue up to in past, and it is also over or it is also finished in past. यानी कि पास्ट में ही शुरू होती है, कुछ समय तक पास्ट में ही चलती रहती है और उसी समय वो फिनिश भी हो जाती है. दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम है. अभी एग्जाम्पल देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेल. व्हेन वी मीट इन लखनऊ, शी हैड
been studying in City College for 3 years. So here when we met in Lucknow, at the time she had been studying यानी कि वो पहले पास की बात है, शुरू भी वहां पे हुई थी फॉर 3 years एंड इट इज कंप्लीटली ओवर इन पास्ट ऑल्सो, पास्ट में शुरू होना और पास्ट में फिनिश हो जाना. सेकेंड, एट दैट टाइम ही हैड बिगन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 2 months. सो दिस इज ऑल्सो द सेम. एट दैट टाइम, कुछ उस समय पे ही हैड बीन वर्किंग, वो वहां पे काम कर रहा था इन द कंपनी फॉर 2 months. तो 2 months के लिए वो वहां पे उस समय में काम कर रहा था. तो काम शुरू भी हुआ था पास्ट में, कुछ समय तक चला और फिनिश भी हो गया. नाउ गो अहेड, रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसको हम अफर्मेटिव में कैसे लिखेंगे? तो पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है. एज द सेम सब्जेक्ट, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर, दैट इज कंपल्सरी. प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फोर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमें सिंस फोर का यूज करना है. इन फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको सिंस और फोर का यूजेस लर्न करवाया था. यू ऑलरेडी लर्न द यूजेस ऑफ सिंस एंड फोर. नाउ द सेम पॉइंट, same period of time, same point of time, same uses we applied here also, but in past. Since for, then, remain word, full stop, over. You can understand while examples. Subject में singular plural दोनों subject यहाँ पे आएंगे. Go ahead, example of affirmative. You had been suffering from fever since Tuesday. Look, you had been suffering, that is the formation of this tense. Then from fever, that is object, since we use here, and Tuesday, that related this word, timing related. The another example, I had been studying for 3 months. This is the also since का use भी है, for का use भी है. 3 months, that is period of time. ट्यूजडे यहाँ पे पर्टिकुलर डे की बात है, पॉइंट की बात है, दैट्स वाई वी यूज दैट. अदर थिंग्स रिमेन एज इट इज. देन रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है? तो ये फॉर्मेट सेम रहेगा, हमें नॉट लिखना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा. वाई यू कंफ्यूज? बिकॉज यहाँ पे हैड बीन सफरिंग, ये 3 में से हम नॉट कहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव के लिए? लेट्स सी दैट. सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल बोथ, हैड नॉट बीन. बीन हैड के बीच में नॉट लिखना है. आपने उसके पीछे लिख दिया या वर्ब के भी पीछे लिख दिया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. देन नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि उसके पीछे हमें आईएनजी लगाना है. वी हैव टू ऐड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, देन अनदर टाइम रिलेटेड वर्ब, देन सेंटेंस ओवर. Look at the example of the same. They had not been going to office. Look, go plus ing to office, यानी कि यहाँ पे स्पेस है ये. Since हमने यूज किया since का, उसके बाद 5th of July. तो ये भी पॉइंट की बात है. जुलाई पूरा मंथ है, उसमें पॉइंट है, कौन सा डेट है फिक्स? 5th of July. That's why we use since there. So keep in your mind where to use not for making negative. And another thing is since and for में confuse मत होना, उसका सही इस्तेमाल करना होता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस completely wrong होगा. पूरा सही लिखा होगा लेकिन since की जगह for की जगह पे since होगा, that is completely wrong. Rules for interrogative sentences. Interrogative में हम क्या करेंगे? तो जैसे हमने पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे देखे हैं, एज द सेम हियर ऑल्सो हेड का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है. लेटर वी विल राइट डाउन सब्जेक्ट, देन बीन रिमेन फॉर्मेट एज इट इज. सब्जेक्ट एंड हेड दोनों को ही सिर्फ चेंज करना है, और लास्ट में हमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेशन का जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें ऐड करना है. जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट आगे है, उसके पीछे हेड पीछे होता है, इसके जगह पे आगे आ गया है. हेड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
then ing, object, since for, timing related word, question mark. Look at this for interrogation. Then the other thing is remain as it is. Abhi yes, the same format we use for negative also. इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. तो उस समय क्या करेंगे हम, हैड शी नॉट बीन, यहाँ पे क्या करेंगे, हैड सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगाना है बीन के आगे एज इट इज. यहाँ हमने क्या किया है, बीन के आगे नॉट लगाया है. तो इंट्रोगेटिव में भी यहाँ दोनों साथ में ही लिखना होता है. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी हमें दोनों को साथ में रखना है. सिर्फ हैड और सब्जेक्ट की प्लेस ही चेंज होगी. लाइक हैड यू नॉट been reading the book since morning. Had you been reading the book since morning? Possible. Then WH word. Look, यहाँ पे WH word की भी फॉर्मेशन है. पहले भी हमने देखा है कि हेड के आगे हमें WH क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है. Here also the same things. Look at example, you can understand. Where had he been playing since morning? तो यहाँ पे सिर्फ WH क्वेश्चन वर्ड H स्मॉल लेटर हो गया और आगे हमने WH क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है. यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं लिखा है बिकॉज ऑफ सम स्पेस प्रॉब्लम, बट आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ऐड करना होता है, बाकी चीजें सेम रहती है. तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस लर्न किया है, देन आफ्टर वी विल लर्न पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी देखा, कब उसका यूज करना है. तो पहले हमने, ये बहुत ही छोटा सा रूल्स है, सिर्फ एक ही रूल्स है, ओनली वन रूल्स, बट इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. समटाइम्स यू कंफ्यूज. व्हाई यू कंफ्यूज? बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लॉन्ग है, अदर देन अदर structures or other sentences. That's why you have to remember this. Then to show this past action completely begin and continue up to some time over in the past, that things हमने देखी, negative, affirmative, interrogative, that all things we will learn in this video related this. Now this class is over. We will learn future tense in another video. Thank you.